الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ گناہوں میں کمی تو آ ہی جاتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ باہر کا عام مشاہدہ یہی ہے کہ ماہ رمضان میں ہماری مساجد غیر رمضان کے مقابلہ میں، رمضان کے علاوہ مہینہ میں لوگ بہت کم رہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسجدیں غیر رمضان کے مقابلہ میں زیادہ آباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں کرنے میں آسانیاں رہتی ہیں، اور اتنا ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے ضرور۔ جو ہی شیطان آزاد ہوتا ہے، جیسے ہی ماہ رمضان رخصت ہوتا ہے، شیطان آزاد ہو جاتا ہے اور گناہوں کا خوب زور بڑھ جاتا ہے۔ دیکھے گا شرابی رمضان میں نہیں، اور جہاں نماز ہوئی مست ہو جائے گا، میں نے یہ تجربہ ہے۔ زناکار نماز ہوئی اپنے زنا میں ملوث ہو گیا۔ میں نے یہ کہہ رہے ہیں کیا ان کو لکھنے کا انداز ہے، اور گناہوں کا خوب زور بڑھ جاتا ہے، اور عید کے دن تو اس قدر گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے نا کہ وہ سینما گھر جو شاید سارے سال میں کبھی نہ بھرتے ہوں نا، ان پر بھی ہاؤس فل کا بورڈ لگ جاتا ہے۔ قریب آ جائیے، ہے نا۔ پورے سال میں جو کھیل تماشے اور میلے جھمیلے نہیں ہوتے، وہ بھی بدقسمتی سے عید کے روز ضرور ہوتے ہیں۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مہینے کی قید کے سبب شیطان بے حد ابھر چکا ہے، اور ماہ رمضان کی ساری کسر وہ عید ہی کے روز نکال دینا چاہتا ہے۔ تمام تفریح گاہیں بے پردہ عورتوں اور مردوں سے ابھر جاتی ہیں۔ اس دن ایک دم بالکل ورانیت میں اپنا لوگ کام کرنے لگتے ہیں۔ تمام ڈرامہ گاہیں بھر جاتی ہیں، بلکہ عید کے لیے نئی فلمیں اور نئے ڈرامے لگا دیے جاتے ہیں۔ مسلمان شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ جاتا ہے، مگر کئی خوش نصیب مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ عز و جل کی یاد سے غفلت نہیں کرتے اور شیطان کے بہکانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب ماہ رمضان کے ایک قدردان مجوسی آتش پرست کی ایمان افروز داستان پیش کی جاتی ہے۔ اس واقعہ کو ہر سال پیش کرتے ہیں۔ آتش پرست پر رحمت، یعنی وہاں کا پوجا کرنے والا آدمی ہے نا، شہر بخارا میں ایک مجوسی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانی شروع کر دی، کھانے لگا، تو جب مسلمان نہیں تو خریدے کرے گا۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا، مارا، اور خوب ڈانٹ کر کہا تجھے رمضان المبارک کے مہینہ میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا تو ٹھیک ہے، میں بھی کھاتا ہوں، مگر چھپ کر اپنے گھر میں کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، اور اس ماہ مبارک کے بے حرمتی نہیں کرتا۔ دیکھیں، ایک کافر، ایک جہنمی آدمی
कह रहा है कि मैं बेहुरमती नहीं करता। कुछ अरसा के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में उसको जन्नत में टहलते हुए देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। पूछा, तू तो मजूसी था, जन्नत में कैसे आ गया? कहने लगा, वाकई मैं मजूसी था, लेकिन जब मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने एहतराम रमज़ान की बरकत से मुझे ईमान की दौलत से और मरने के बाद जन्नत से सरफराज फरमाया रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैंने वो जन्नत में हो गया, मुसलमान हो गया, मरने से पहले कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ने उसको कलमा पढ़ने का शर्त हासिल करा दिया, अब जन्नत में चला गया। सिर्फ रमजान का एहतराम कर दिया। हम तो मुसलमान होकर रोजा नहीं रहते तो एहतराम भी नहीं करते, सबके सामने चाय पीना खाना नहीं रहते हैं तो उसका रमजान में सरेआम खाने वाला सजाए कत्ल का मुस्तहिक है। सुन लीजिए, मैंने फारूक को 10 मरतबा कहा, नहीं ठीक है रोजा मजबूरी है, परेशानी है मत, लेकिन घर में चाय पिए खाइए कोई बात नहीं, लेकिन बाजार में चाय खाने में जाकर नहीं। प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने माह रमजान की ताज़ीम के सबब एक आतिश परस्त को अल्लाह अज़्ज़ वजल ने न सिर्फ दौलत ईमान से माला माल किया, सिर्फ दौलत ईमान ही नहीं दिया बल्कि उसको जन्नत की लाजवाल नेमतों से भी नवाज दिया। इस वाक़या से खुसूसन हमारे उन गाफिल इस्लामी भाइयों को दर्स इबरत हासिल करना चाहिए जो मुसलमान होने के बावजूद माह मुबारक का बिल्कुल एहतराम नहीं करते। अव्वल तो वो रोज़ा नहीं रखते, फिर चोरी और सिनाजोरी यूं के लोगों के सामने ही सिगरेट वगैरह के कश लगाते माने पीते हैं, बल्कि पान भी चबाते हैं। हत्ता के बाज तो इतने बेबाक माने इतने बेडर होते हैं, बेबाक और बेमरवत होते हैं कि सरेआम पानी पीते बल्कि खाना तक खाते भी नहीं शर्माते। याद रखिए, फुक़हाए किराम फरमाते हैं, जो शख्स रमजान मुबारक में बगैर किसी मजबूरी के अलर ऐलान जानबूझकर खाए पिए उसको कत्ल कर दिया जाए। दुर्र मुख्तार रद्दुल मुख्तार में ये अगर तंदुरुस्त है जानबूझकर खाता पीता है उसके साथ कोई उसको कत्ल करो, या तो आप बोल भी नहीं सकते। 9 लाख बरस का आज़ाब। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर करो, सोचो, जब रोजा खोरों की दुनिया ही में इस कदर सख्त सजा तजवीज़ की गई है कि जो रोजा नहीं रखता है तंदुरुस्त होकर उसको कत्ल किया जाए, तो कह रहे हैं अगरचे अब दुनिया में कहीं भी इस पर अमल न सही तो आखिरत की सजा किस कदर हौलनाक और तबाहकुन होगी। अरे दुनिया में नहीं मिला, वहाँ नहीं छोड़ा जाएगा, यहाँ तो कोई नहीं बोलेगा, डर से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक हदीस नकल की है जिसमें बयान किया गया है कि जिसने बगैर किसी शरई मजबूरी के, मजबूरी क्या है, ऐसी बीमारी हो गई है कि अगर रोजा रखते हैं तो आप मर सकते हैं। हमने भी देखा है, हमारी भी तबीयत कराती है, हम रोजा जो है कल ऐसा चक्कर है, कभी पहला रोजा को, कभी दूसरा रोजा का, कभी तीसरा रोजा का। मैंने लॉकडाउन में दुआ किया, अल्लाह ताला मालूम होता है कि मुझसे कभी नवाफिल रोजा नहीं छूटता था, और डॉक्टर भी मना करता, घर के लोग मना करते। हमारी ख्वाहिश है कम से कम 3 साल 30 रोजा करा देता है तो कम से कम हमारा अरमान पूरा हो जाता। मैंने कहा, और डॉक्टर साहब भी कहे कि मत रहिएगा, धोखा हो जाएगा। हमने कहा कि अल्लाह ताला 3 खत्म कुरान पढ़वा देता तो ठीक होता। क्या कुदरत की शान है, अल्लाह अपने बंदों की खूब सुनता है। हम 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, और 27 रमजान को 4 खत्म कुरान पाक पढ़ दिए। 3 खत्म नहीं,
4 खत्म हो गया, और 2.5 दिन में 1 खत्म पड़े, 5 खत्म कर हम बात पढ़ दिए, और 300 रोजा रख दिए। तो रख दिए तो ईद बाद 2-4-10 दिन के बाद ऐसी तबीयत खराब हुई कि रोना पीटना घर से लोग आ गए, मन मर गया, कब नहीं बचेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। डॉक्टर साहब ने कहा माना किया गया था ना, हमने कि देखिए ना, हम बचपन से रोजा रखते थे लेकिन बड़ी हमको अरमान था, तो हमने अल्लाह के बरगाह में अर्जी पेश किया कम से कम एक मतलब जिंदगी में हमको 300 रोजा फिर मिल जाए। बीमार में भी ख़त्म कुरान 3 खत्म अफजल है, तो 5 खत्म पढ़े तो अल्लाह ताला सुनाने वाला है। अभी हम 3-4 खत्म पढ़ दिए, इधर शबरात के पहले 3-4 खत्म पढ़ दिए। एक हदीस नकल की है जिसमें बयान किया गया है कि जिसमें बगैर किसी शरई मजबूरी के, वो भी मुसलमान डॉक्टर हो, शरीयत का तो लोग कहता है कि रोजा नहीं, आपका कुछ बता देगा तो हम इस्लाक हैं कि नहीं। और डॉक्टर बता रहा हमारे जिसमें इस्लाक है तो नहीं, यानी तो बुरा हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, ज़ईफ हो गए हैं, हदीस शुक्रान हमने पढ़ा, तो आपको गुनाह नहीं होगा। मजबूरी के एक भी रोजा रमजान तरक किया, वो 9 लाख बरस जहन्नम की आग में जलता रहेगा। सुने, 9 लाख बरस जहन्नम की आग में जलता रहेगा। मुसलमानों होश में आ जाओ, कब तक इस दुनिया में बिछड़े उड़ाते रहोगे? अब बहाना मने करते रहेंगे, बहाना लोग कहते हैं दवा चल रही है। क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या इस दुनिया में हमेशा इस तरह दंदनाते फिरोगे? हरगिज नहीं, एक न एक दिन मौत जरूर आएगी। और रोजा रहने से आंत में ये कैसी चीज है, उसको जहन्नम की चीजें जो जला देती है वो, और साल भर आप तंदुरुस्त रहिएगा, ठीक रहिएगा। रोजा से बहुत फायदा है, बहुत बीमारी खत्म होती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं, हाँ रोजा से साल, जैसे घड़ी, टीबी, मशीन साल भर में मालिक दिया जाता है मोटरसाइकिल के लिए, वैसे ही साल भर में ही जिस्म के वो दवा है। और तुम्हारा रिश्ता हयात मुनक़ता करके नरम व नाजुक पलंग और गुदाज मतलब नरम बिस्तर, गुदाज बाराम देह तकियों से उठाकर मिट्टी पर सुला देगी। बेहतरीन हवादार ठंडे ठंडे और हर तरह के सामान्य तरफ से आरास्ता कमरों से उठाकर अंधेरी कब्रों में पहुंचा देगी। फिर पछताने से कुछ हाथ नहीं आएगा। अभी मौका है, गुनाहों से सच्ची तौबा कर लो और रोजा व नमाज की पाबंदी अख्तियार करो। बताया गया है कि आपकी कैंची से चमड़े काटे जाएंगे तो बनना के अल्लाह हमको नहीं मानते कि दिन तकलीफ होगी, तो हम कभी गुनाह करें, अभी से भेज दे दुनिया में, तो अल्लाह का काम नहीं हो गया। वो 2 दिन का बाजार था, समझे ना, आपकी कैंची से काटी जाएगी। चलिए दुआ कर लीजिए, दुआ कीजिए। आमीन।